students. So we'll be starting up with the lectures on economics. So this is our first lecture. In first lecture we'll be discussing what is economy is all about, what are the central problems of an economy, what are the types of the economy, and in the next lectures we'll proceed with the macroeconomics and the microeconomics. So starting up with your first topic, that is meaning of economics. Now, what is economics and why do we feel the need to study economics? There are 2 points that need to be remembered. The first point is that resources are scarce. इसका मतलब है कि our resources are limited. जो हमारे resources हैं वो limited हैं, और जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं दे आर नेवर एंडिंग, बिकॉज द ह्यूमन इज़ अ ग्रीडी पर्सन हु every time wants more and more of everything. So in order to meet the needs and the greeds of an individual, our resources are short and our resources are limited. So that means our needs always race ahead of our resources. इसका मतलब है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो एक्सीड करती है हमारे रिसोर्सेज की कैपेसिटी से. हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल कर सकें. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेज इज़ कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं दे आर लिमिटेड और दे आर स्केयर्स, एंड दिस इज़ आर यूनिवर्सल प्रॉब्लम. Now the second thing is resources are not only scarce but they have alternative uses as well. Alternative uses का मतलब क्या है? This means the scarce resources have alternative uses. This is also written here. Now alternative uses का क्या मतलब है? If we take an example of any of the resource, say a land. लैंड एक रिसोर्स है हमारा. लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं. अब लैंड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर राइस में भी यूज़ हो सकता है, उसको हम वीट की प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलरली शुगर केन की प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ इट हैज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस. अब वी हैव टू थिंक रैशनली कि अगर हम उसे राइस में इन्वेस्ट करेंगे लैंड को तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम वीट में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या हम शुगर केन की प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे लैंड को तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा. सो दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट. सो पहले हम देखेंगे दैट देयर आर 2 प्रॉब्लम्स. द one is your the scarcity of the resources, the second is your the resources have alternative uses. Now it has not only one resource but it has alternative uses. So इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम माइंड में रखेंगे. नाउ इकोनॉमिक्स किससे बात करता है? Now the definition of the economics says that it is a subject matter that focuses on the rational management of scarce resources in a manner that our economic gains are maximized at the macro as well as the macro as well as the micro level. So हम इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन है इस वे में की जाए ताकि हमें मैक्सिमम गेन्स रियलाइज़ हो उससे. सो this is also written economic focuses on the rational management of scarce resources in order to maximize the economic and the social welfare. So this was all about the economics. Now if we see, there are broadly economics is classified into 2 things. The one is your macroeconomics and the other is your microeconomics. So if we see now what is microeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू जब भी हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल फर्म लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर लेवल पे बात करते हैं, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब भी हम एग्रीगेट लेवल पे या नेशन एज अ होल की बात करते हैं तो दैट मीन्स it is macroeconomics. Now what are the differences? I'll explain you in the detail. The microeconomic studies the economic relationships or the economic problems at the level of an individual, like an individual firm, individual household or an individual consumer. Suppose I'll give you the example. Suppose हम theory of demand, theory of supply या theory of consumer behavior की बात करते हैं, तो हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं कि वो अपनी डिमांड सप्लाई को ट्रीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है, या डिमांड सप्लाई से क्या उसका प्राइस पे रिएक्शन होता है, या प्राइस कैसे रिएक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू दी क्वांटिटी और वाइस वर्सा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशन एज अ होल को कंसिडर करते हैं, वेयर एज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं.
मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम की बात करते हैं हम कि पूरी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी उसकी नेशनल इनकम कितनी है या जीडीपी कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज़, वो कितनी है कंट्री की, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है हमारी कंट्री का, दैट ऑल फॉल अंडर योर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी स्टेटस क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, तो this all falls under your macroeconomics. Here is also written macroeconomics is the study of economics at an individual, group or a company level, whereas the macroeconomics is the study of a national economy as a whole. So I've already given the examples in both the cases. Now we will talk that there are four basic processes that are involved in an economy. जो हमारी economy है इन चार processes पे work करती है. These are the basic processes which you need to understand कि ये होते क्या है, क्योंकि हमारी आगे जो economics we'll study, so this will be based on these minute concepts, so we need to study these concepts also. So the first is your production. Now what is production? मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, हम किसी चीज़ में इनपुट्स डालेंगे और हमें एक आउटपुट मिलेगी. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और getting all the inputs together and transforming into an output or into a finished product, so that is known as the process of the production. Suppose now what are the factors of production? This is very important. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए हम फैक्टर्स यूज़ करते हैं. सपोज़ द फर्स्ट फैक्टर इज़ हमें एक लैंड चाहिए प्रोडक्शन के लिए, फिर हमें लेबर भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, फिर उसके बाद हमें कैपिटल भी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए इन द मशीनरी और इक्विपमेंट्स के लिए. ठीक है, फिर हमें एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन. सो द फोर मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट आर योर लैंड, योर लेबर, योर कैपिटल एंड योर एंटरप्रेन्योर. सो ये सब हमारे इनपुट्स भी हैं, इन सब को यूज़ करके हम एक फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हम वी आर प्रोड्यूसिंग सपोज अ गुड, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अ पेन. हम एक पेन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक लैंड चाहिए जहाँ पे हमें मशीनरी लगानी है. जब हम मशीनरी लगाएंगे या कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक योर मशीनरी लगा रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, तो दैट इज़ योर कैपिटल. देन हम उस पर लेबर लगाएंगे, क्योंकि मशीनरी कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, तो हमें उसको यूज़ करने के लिए लेबर की ज़रूरत है. सो लेबर विल बी योर वन ऑफ द इनपुट and one of the factors of production. ठीक है, तो we need entrepreneur to supervise all these factors of production. So इन सब inputs को डालेंगे, so हमें जो output मिलेगा that will be your pen. So therefore it is defined as the creation of utility. It is a process in which inputs are transformed to goods or services. Now second is your consumption. Consumption, it is a process by which a good or service is completely used up. Now consumption means consuming something. Individual goes and buys a pen, that means he's consuming that pen. He goes and buys some kitchen item, or you can say sugar, milk, or anything, so that means he's consuming that item. So this is your consumption. Now next is your investment. नाउ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, सपोज़ आई हैव 10,000 रुपीज़, मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं. अब आई विल इन्वेस्ट दैट 10,000 रुपीज़. मैं उस 10,000 रुपीज़ को या तो बैंक में इन्वेस्ट कर सकती हूँ. जब बैंक में इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो दैट विल बी माई रिटर्न. ठीक है, या तो हो सकता है मैं इस 10,000 को अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो अगेन आई विल बी गेटिंग सम रिटर्न और आई विल अर्न दैट फ्यूचर इनकम. या मैं किसी कैपिटल में इन्वेस्ट, कैपिटल मतलब किसी भी बिजनेस की कैपिटल, दैट मीन्स लाइक मशीनरी में इन्वेस्ट कर दूँ, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर दूँ, या अपना शेयर बिजनेस में डाल दूँ. इन यू कैन से पार्टनरशिप बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आई कैन इन्वेस्ट इन एनी फॉर्म. दैट मीन्स जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं फॉर अर्निंग द फ्यूचर इनकम, दैट इज़ नोन एज योर इन्वेस्टमेंट. Then now next is your exchange. It means the process by which the ownership is transferred from seller to buyer for a consideration. Now exchange means suppose I go and buy a pen and in exchange I pay some money. तो उस exchange में जब मैं money pay कर रही हूँ, that means there is exchange of things. मतलब मैंने pen खरीदा और in exchange मैंने उनको money दी, या मैंने I am buying some milk and in exchange I am giving some
money. So that means कि I'm exchanging something. So these are the four concepts: the production, consumption, investment and exchange, जिनको हम यूज़ करके पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं. Now we will see what are the types of the economies that exist. So first is your market economy, you can say capitalist and the free economy. Now जब हम capitalist economy की बात करते हैं, the first point is जो हमारी इकोनॉमी है that is under the capitalist. एक कैपिटलिस्ट जो है उसका जो मोटिव होता है दैट इज़ ओनली द प्रॉफिट मोटिव. कैपिटलिस्ट वर्क्स फॉर ओनली हिमसेल्फ एंड नॉट फॉर द सोशल वेलफेयर. एक कैपिटलिस्ट जो है वो अपना सेल्फ प्रॉफिट मोटिव देखता है कि उसका प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, उसी पे वो वर्क करता है. एंड इट इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दी योर दी सोशल वेलफेयर, कि सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इट ओनली पर्टेन्स टू योर सेल्फ वेलफेयर और यू कैन से द सेल्फ प्रॉफिट मोटिव. See, लेकिन all the important decisions regarding production, consumption, exchange of goods and services are made through market. That means forces of demand and supply. मतलब कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो हैं हमारी इकोनॉमी की, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, लेट इट बी योर प्रोडक्शन, कंजम्पशन और वॉट एवर, वो हमारे लिए जाते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. दैट मीन्स देर आर टू थिंग्स, द डिमांड एंड सप्लाई. जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करती हैं या वेयर एवर दे इंटरसेक्ट, सो उससे हमें एक प्राइस और एक क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है जिस पे हमारी इकोनॉमी वर्क करती है. सो कैपिटलिस्ट का मतलब है इट इज़ ओन्ड, it is concerned to only the profit motive. It does not bothers about your social welfare. ठीक है, these 2 points. Now next is centrally planned economy, socialist and controlled economy. That means all the important decisions are taken by the government. इसमें हमारे जितने भी डिसीजंस हैं सारे के सारे गवर्नमेंट लेती है, कुछ भी कैपिटलिस्ट के हाथ में नहीं होता है. सो इट लीड्स टू दी सोशल वेलफेयर. जब गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए काम करती है तो वो ये चीज़ कंसिडर करती है कि the whole welfare should be maximized. The social welfare is the prime motive and it should be maximized. Now next is your mixed economy. Mixed economy means some of the important decisions are taken by the government and some of the important decisions are taken by your capitalist. So it is a mixture of both your capitalist plus your socialist economy. नाउ इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, तो हमारे इंडिया में कुछ डिसीजन जो है वो कैपिटलिस्ट लेता है और कुछ डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट लेता है. सो दिस मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सोशलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज द योर capitalist economy. Now your economic problems and its emergence. Now what are your, we have already started that human wants are unlimited and resources are limited, resources have alternative uses. This we have already studied. Now next is the central problems of an economy. अब हमने पढ़ा है कि इन रिसोर्सेज को जो है एफिशिएंटली यूज़ किया जाए. नाउ वी विल सी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. कि हमने पढ़ा है हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अब इन चीज़ों को हमें पहले देखा था कि हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे की जानी चाहिए सो दैट देयर आर मैक्सिमम और ऑप्टिमम गेन्स. तो नीचे जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. नाउ फर्स्ट इज़ योर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. तो इंडिया के केस में क्या है, नाउ लेट अस टेक कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. नाउ कंज्यूमर गुड्स जो हैं दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कैपिटल गुड्स दैट इंक्रीज योर प्रोडक्शन. तो हमें इंडिया के रिस्पेक्ट में देखना है कि हमें कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है या कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करनी है. तो अगर हमें कंज्यूमर गुड्स की अगर हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है तो वी विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. अगर हमें अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो वी विल फोकस ऑन द कैपिटल गुड्स. तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए. नाउ सेकेंड इज़ हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस.
Now there are two techniques of production. The one is your labor intensive and the other one is your capital intensive. अब labor intensive technique का मतलब है when more of labor is used and less of capital is used. कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मोर ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड एंड लेस ऑफ लेबर इज़ यूज्ड. तो इन दोनों केसेस में क्या है, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में देयर इज़ एनॉर्मस पॉपुलेशन अबंडेंट नेशन है हमारा, एंड आवर नेशन इज़ अ लेबर अबंडेंट नेशन. लेबर बहुत ज़्यादा है हमारे पास. ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ द लेबर आवर लेबर इज़ चीप. हमारी जो लेबर है वो चीप है, तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे रिलाई करेंगे. एंड एज़ कम्पेयर टू द लेबर वी हैव अ वेरी एक्सपेंसिव. कैपिटल जो है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ती है और लेबर जो हमें चीप पड़ती है. सो एज अ रिज़ल्ट हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे रिलाई करते हैं. सपोज़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएस. अगर हम यूएसए की बात करें तो दे विल रिलाई और दे विल डिपेंड अपॉन योर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, क्योंकि उनकी जो लेबर है दैट इज़ एक्सपेंसिव वेयर एज कैपिटल इज़ चीपर. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी कंट्री टू कंट्री, तो प्लेस टू प्लेस कि आपको लेबर चीप पड़ती है, कैपिटल चीप पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है डिटरमाइन करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर whom to produce. Now for whom to produce means who gets how much. अब इसके अंदर हमारी दो चीज़ें हैं, द फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हुआ, फैक्टर्स हैं हमारे, आप ऑलरेडी टोल कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब जो लैंड है दैट अर्न्स रेंट, ठीक है, जो लैंड है उसे रेंट मिलता है, जो लेबर है उसे वेजेस मिलती हैं, जो कैपिटल है उसे इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर है ही अर्न्स दी प्रॉफिट. तो ये जो 4 चीज़ें हैं हमारी, ये जो 4 चीज़ें हैं हमारी, दी रेंट, वेजेस, योर इंटरेस्ट एंड योर प्रॉफिट, ये चारों जो हैं दीज आर दी इनकम टू दी फैक्टर्स. ये हमारी फैक्टर इनकम है, क्योंकि ये जो फैक्टर है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें अर्न करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो दिस इज़ आवर फैक्टर इनकम. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि कैसे हम इनकम को डिवाइड करें बिटवीन द इंडिविजुअल्स, बिटवीन द हाउस होल्ड इन द सोसाइटी. सो द बेसिक मोटिव इज़ how to divide the income into factors or into individual or households so as to promote the equality. मतलब कैसे हमारी इनकम जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो है इक्वालिटी रहनी चाहिए. So these are all the problems that arise due to your, you can say, due to your टू मेजर प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की कि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ह्यूमन वांट्स लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हैं, और हमारी जो रिसोर्सेज हैं दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. In next lecture we will study about the production possibility curves in the opportunity cost curves. Thank you.